Welcome all of you, my friends, ladies and gentlemen. First of all, I'll thank you to the Rotary Club, Bombay West and all other Rotary Clubs in association with this Mahaseva. Empower you, that is the society, on the topic of income tax, which is always a burning issue. To spread some knowledge on the vital aspects of the income tax on the cooperative housing society. We are here. We thank you very much for that. Cooperative housing society has been made to understand that on the income tax front, on the basis of the concept of mutuality, there is no income tax. So we all understand that societies are not liable to income tax in a common parlance. That we understood. After that, lot of changes have come and lot of things are being disturbing, and now government wants to tap each and every information of a society. So they say that first of all, cooperative housing society has to file the income tax return. So please bear in mind, do not ever try to avoid not filing an income tax return. Maybe it is taxable or maybe it is tax free, tax लगता है नहीं लगता है साइड में छोड़ दो, but every year as a religious duty, one society has to file the income tax return. And there are lot many chartered accounts are available, you can take the help of it via filing the returns of income. That is one. Secondly, cooperative housing society has been made mandatorily liable to deduct TDS on all sorts of payments made by them. Professional charges, labor charges, lift maintenance, AMC charges and all that. And TDS की requirement भी इतनी गहरी कर दी है कि if you do not deduct the income tax, fail to deduct, there are provisions of prosecution under section 276B. So the committee members, the members who are liable to, the person who is in charge, responsible for deducting TDS and pay to the government also can be prosecuted. So please bear in mind कि TDS की सलाह जब लेने जाओ और अगला बोले नहीं काटोगा तो चलेगा, तो वो वर्ड को एक्सेप्ट मत करो. काट लो, काट के भरने से अगले को तो क्रेडिट मिलने वाला ही, तो अपनी जवाबदारी क्यों छोड़ दे. लाइक एग्जाम्पल, आप मुझे प्रोफेशनल फीस दे रहे हो, 30,000 तक का थ्रेशोल्ड है, TDS नहीं लगेगा, ठीक है, तो आप बोलोगे नहीं काटोगे. फिर उसी साल में दूसरी एक सेवा आई एंड यू आर पेइंग मी 20,000, तो एग्रीगेट 30 क्रॉस हो गया, TDS लगेगा, तो 30 के टाइम भी काट लो. बोलो साहब आपका TDS कटेगा, आपको इनकम टैक्स में बाद मिलने वाला, आप मेरे पीछे क्यों पड़े. सो एज अ सोसाइटी फ्रॉम माई साइड टेक अवे इज दैट प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू डिडक्ट TDS ऑन एनी पेमेंट्स विच आर लायबल. अगले को क्रेडिट मिले बट आपकी जवाबदारी से आप मुक्त हो जाओ. दैट इज वन. सेकेंडली, देयर आर सर्टन TDS प्रोविजंस नया भी अभी आया जिसका इम्प्लीकेशन अपन देख लेंगे. तो हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को नॉर्मली 3 इश्यूज आते हैं, उसमें 1 by 1 ले लेंगे. वन इज द रीडेवलपमेंट. तो जो रीडेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटीज जब होती है तो क्या टैक्सेशन लगता है, कैसे लगता है, उसका अपन प्रोविजन इन डिटेल स्टडी करेंगे टुडे, एंड वी विल फाइंड आउट कि भाई टैक्स कैसे लगेगा. एज यू नो, हर एक सोसाइटी के पास प्लॉट साइज होता है, प्लॉट पोटेंशियल्स होता है, और डे बाय डे ऑन अ पीरियड ऑफ टाइम अक्रूवल होता है. तो जैसे गुड ओल्ड डेज में 1 FSI था, 1.33 हुआ, फिर 2.70 हुआ, फिर अभी 3.40 चल रहा है. यू नेवर नो, इन अनदर 1 more year it will become 5. So your FSI, that is the permissible floor space index which you can construct on a plot of land, will increase day by day. So ये जो development rights जो generate होता है वो day by day because of the development regulation act जो change होता है, उसके rules में जो factor चाहिए, FSI factor change होता है, but society doesn't spend for that. 1 रुपये का 5 रुपया बनता है, तब तक सोसाइटी को कोई खर्चा नहीं लगता है. तो जब डेवलपमेंट होता था तो वी से दैट के on any money which is received by the society from the developer towards the transfer of the development rights to the developer does not have a taxability. As Sudhar sir ji said that there was a decision of a Supreme Court, BC Srinivasan Sethi, and that case we used to follow in all the society, saying that cost of acquiring the development rights in my books is nil, unascertainable, not known, rather zero. These are all the word we use. So whatever money which has come to me is capital receipts. It is not liable to tax. That was the judgments given as of today. But in all those judgments, they have used one word, that development rights is a capital asset, which we will not say that it is wrong. Because anything and everything which is attached to land or building or appurtenant thereto, तो ये जो FSI का rights निकला है वो land से निकला है, हवा में से तो नहीं आया. बिकॉज यू आर ओनर ऑफ अ प्लॉट ऑफ अ लैंड ऑफ से 500 meters, there is now FSI 3.40.
तो ये बढ़ गया। अब ये FSI जो बढ़ा है, जो आप डेवलप करना चाहते हो रीडेवलपमेंट में बिल्डर के साथ, तो आपने ये बेचा ही है, भले पैसा आया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील, तो ये सब सरकार को मालूम पड़ना लगा जैसे जैसे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के डिसीजन आने लगे कि ये कोऑपरेटिव सेक्टर में डेवलपमेंट राइट्स के जब बेचने की बात आती है और डेवलपर से बड़ा पैसा आता है। बड़ा पैसा कैसे आता है? दे गेट कॉर्पस एंड मेंबर्स गेट एक्स्ट्रा एरिया, 25%, 30%, 40%, whatever may be the developer giving. Then members get the rents, hardship compensation, brokerage, खाली करने का, shifting allowance वगैरह वगैरह, और ये सब चीजें जो आती थी, this was not being taxed anywhere. Everybody and every like society as well as the members used to say हमको tax नहीं लगता है because it is not taxable. So one fine day, all that decisions which has been rendered based on DC Srinivasa Sethi, they made an amendment effective 1st of April 24, section 55 subsection 2 subsection A, where they have specified that in this scenario the cost of acquisition of the development rights will be considered as nil. So now you cannot say that you are allowed to subtract nil. So whatever money you receive now in the hands of the society will have to be treated as a capital gain because the development right is a capital asset, and the money which you receive is receipt on sale of a development rights which is a capital asset, so it will be a capital gain. Tax rate will be 20%. So अब यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आता है सुधार साहब का। जब डेवलपमेंट एग्रीमेंट अगर आप ड्राफ्ट कर रहे हो तो एडवोकेट के साथ बैठ के चार्टर्ड अकाउंटेंट की सलाह लेके इतना मेक श्योर करो कि सोसाइटी 1 रुपया हाथ में नहीं लेगी। अगर सोसाइटी रिसीव करती है कुछ कॉम्पेंसेशन हार्ड कैश, देन डेफिनेटली कैपिटल गेन कम्स। और अगर सोसाइटी लगती है कि हमें ही लेना है, मेंबर को नहीं देना है, पूरा कॉर्पस हमें दे दो, तो देन सोसाइटी शुड बी प्रिपेयर टू पे 20% टैक्स ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब दूसरा बदलाव ये भी आया है कि जो चीज का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर आपको पता नहीं चलता है, जिसको नील पकड़ना है, बट हैपन टू से दैट योर सोसाइटी इज वेरी ओल्ड, 35-40 years old, and your development right has accrued to you over a period of time, then you can even ask for the cost of acquisition, which is called as a deemed cost of acquisition, via adoption of the development rights valuation as on 1/4/2001. So 1/4/2001 का अगर वैल्यूएशन डेवलपमेंट राइट्स का हो सकता है तो उसका वैल्यूएशन सर्टिफिकेट लेके उसका इंडेक्स करके वो इंडेक्स वाला जो अमाउंट है वो आप अपने कैपिटल गेन में से माइनस कर सकते हो। दैट इज वन थियोरी। Second theory is that let the members face, even compensation also at the rate of 1,000, 2,000, 3,000 rupees per square feet should go to the members in hand. So पूरा taxation from the society will shift it to the members rather it being taxed in the hands of the society. तो सोसाइटी को यही ध्यान रखना है कि हमें हाथ में कुछ नहीं लेना है, नहीं तो टैक्स भरने की तैयारी रखनी। अब मेंबरों की बात आती है तो मेंबर्स वैसे भी दिखा देगा कैपिटल गेन है, एंड दैट कैपिटल गेन डीम्ड टू हैव बीन रीइन्वेस्टेड इनटू द न्यू फ्लैट व्हिच इज बीइंग ऑफर्ड बाय द डेवलपर। सो सेक्शन 54, 54F व्हाटएवर सेक्शन इज एप्लीकेबल, वो इसका बेनिफिट ले लेगा, और वो बेनिफिट लेने के बाद उसे टैक्स कुछ लगने वाला नहीं है। तो ओनली कंडीशन इज दैट ही हैज टू होल्ड दैट अनदर फ्लैट, नया वाला जो आता है, फ्रॉम द डेट ऑफ द ओसी और द पोजीशन ही हैज टू होल्ड इट फर्दर पीरियड ऑफ 3 years, जो भी कंडीशन है। अगर वो कर लेता है तो डेवलपमेंट राइट्स का निकल जाएगा। अब ये तो आज का माहौल हो गया कि 1/4/24 के बाद अमेंडमेंट आ गया है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ डेवलपमेंट राइट्स विल बी कंसिडर्ड एज नील। सेकेंडली यू हैव टू अडॉप्ट द वैल्यूएशंस मेथड्स एंड ऑल दैट। इसके अंतर्गत में और एक बदलाव ये कर दिया है जो इसको एप्रोप्रिएट करने के लिए बिल्डरों के जिम्मे पे डाल दिया है कि नाउ बिल्डर कोई भी एग्रीमेंट के तहत, दैट्स कॉल्ड एज अ डेवलपमेंट एग्रीमेंट, अगर कुछ भी पेमेंट किसी भी रेसिडेंट को या नॉन रेसिडेंट को देता है तो देयर विल बी ए TDS। अब TDS आ गया 194IC में। आप लोगों को कॉमनली मालूम होगा 194IA में फ्लैट खरीदते हैं तो हमें 1% TDS काट के जमा कराना पड़ता है। उसी सिलसिले में उन्होंने 194IC डाल दिया कि अब डेवलपर कोई भी डेवलपमेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करेगा और रजिस्टर करने के बाद वो डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अंदर लिखे हिसाब से किसी को कॉम्पेंसेशन देगा, किसी को रेंट देगा, किसी को हार्डशिप अलाउंस देगा, किसी को समझो कि ब्रोकरेज ट्रांसफर वगैरह, और सोसाइटी को अगर कुछ लमसम पेमेंट भी देता है तो दिस इज ऑल सब्जेक्टेड टू TDS। 194IC ये TDS आ गया, उस पर 10% TDS आ गया। अब ये लाने का उम्मीद इसलिए किया, सरकार को पता था कि लॉट मेनी डेवलपर्स एंड लॉट मेनी सोसाइटीज वर गेटिंग स्कॉट फ्री एंड दे वर नॉट इवन फाइलिंग द रिटर्न, दे वर नॉट इवन डिक्लेयरिंग द रिटर्न ऑफ इनकम में ये दिखाते, दे वर इवन फाइलिंग द रिटर्न तो इसको डिस्क्लोज नहीं करते, बोले ये तो हमें तो बताया गया कि टैक्स फ्री है। अब ये TDS जाके बैठ जाएगा आपका 26AS में। सो 26AS को कोऑपरेट करने के लिए अब जब रिटर्न भरोगे तो ये इनकम दिखानी ही दिखानी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने अच्छा सा तोड़ निकाला कि TDS डाल दो,
जिसके जिसके खाते पे टीडीएस जाएगा उसको जवाब देना पड़ेगा. अब now when TDS come and sit in the for 26 years of a society, society will have to file a reply or show it properly in the income tax return or the members, whatever it may be. So ये एक बदलाव आया है जिसकी वजह से अब बिल्डर भी कुछ भी देना चाहेगा, कुछ भी आपको under whatever name it is, he has to deduct the TDS at 194 IC में 10% के हिसाब से काटना है. 10% के हिसाब से टीडीएस आपके रिटर्न में अगर आ गया या सोसाइटी के रिटर्न में आ गया तो यू हैव टू शो करस्पॉन्डिंग इनकम आइदर इन टैक्सेबल जोन और इन टैक्स फ्री जोन. एग्जाम में भी कहीं तो डालना पड़ेगा और उसको फाइट करने की स्पिरिट रखनी है. तो इट मे बी अगेन लाइक जैसे कॉर्पस में आ गया और आप बताओ कि भाई हमारे कैपिटल गेन में जाएगा तो आपको कॉस्ट डिडक्शन मिलने वाला है, जो जीरो की जगह आप डिम्ड वैल्यू ले सकते हो, उसका इंडेक्सेशन ले सकते हो, वो दिखाओ. बट दैट हैज टू बी प्रॉपरली डन इन दिस केस. वन मोर एपिसोड जो अभी चल रहा है एज ऑफ टुडे के दिस वी आर टॉकिंग अबाउट 1424 ऑनवर्ड्स, जहां पे अमेंडमेंट आ गया. अब बिल्डर भी इसका पालन करेगा, आपको भी उसका लॉ एंड अबाइड पे पालन करना है. व्हाट हैज दैट हैपेंड प्रायर टू 24? अब इनकम टैक्स ने एक सेक्शन निकाला है कि हम पिछले 3 साल का रिटर्न किसी भी मुद्दे पे खोल सकते हैं. अगर आपने रिटर्न भरा है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, और अगर आपने रिटर्न नहीं भरा है और कुछ इन्फॉर्मेशन, दोनों मिसमैच के पॉइंट पे 3 साल का रिटर्न सिंगल 1 रुपये के लिए भी वो खोल सकते हैं. 3 साल से लेके प्रीवियस 10 इयर्स तक वो जा सकते हैं, जबकि अंदर मामला 50 लाख के ऊपर का है. लॉट मेनी सोसाइटीज का मामला 50 लाख के ऊपर का ही होगा. अगर आपका डेवलपमेंट एग्रीमेंट रजिस्टर होता है डेवलपर के साथ रीडेवलपमेंट के लिए, उसका एक तकनीकी रीजन से वैल्यूएशन होता है, और वो वैल्यूएशन है दैट इज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द डेवलपेबल राइट्स विच इज पासिंग इट ओवर. सेकेंडली, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन एरिया विच ही इज यूजिंग towards the rehab people, and there is some formula for the reconstruction area also, and whatever आप deposit लेते हो या rent देते हो उसका valuation होता है. Now that valuation runs definitely more than 50 lakhs. I have seen a society where this valuation of development agreement goes in crores, 20 crores, 15 crores वगैरह वगैरह, बड़ा सोसाइटी होता है. अब इनकम टैक्स का कहना यह है कि अगर 20 करोड़, 15 करोड़, 14 करोड़ का डेवलपमेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्री हुआ है और सोसाइटी ने कोई इनकम टैक्स ही नहीं दिखाया, सोसाइटी ने कोई कैपिटल गेन नहीं दिखाया, तो लॉट मेनी केसेस आर बीइंग रीओपन्ड प्रायर टू 24. सो दे आर गेटिंग नोटिस अंडर सेक्शन 148. Believe me, from my side, you have to handle these notice under section 148 very carefully. नहीं तो वहाँ एक और गधा बैठा है, वो कुछ नहीं करेगा, 14 करोड़ ऐड करके आपको डिमांड बना के भेज देगा. उसे भी वही समझाना है, बीसी श्रीनिवासन सेट्टी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन नील, कैपिटल गेन डज नॉट अराइज, वी आर कवर्ड बाय दैट, एंड बॉस वी हैव नॉट गॉट एनी मनी. यू सी द एग्रीमेंट, इन एंटायर डेवलपमेंट एग्रीमेंट कंसिडरेशन पेड टू द सोसाइटी इज नील. जो भी मिला है वो मेंबरों को मिला है इन बाय वे ऑफ अ कॉर्पस, बाय वे ऑफ अ से एक्स्ट्रा एरिया, बाय वे ऑफ सम रेंट, हार्डशिप अलाउंस एंड ऑल दैट. बट सोसाइटी के अकाउंट में पासबुक देख लीजिए, कुछ नहीं आया है. दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. अदरवाइज द सोसाइटीज विच से दैट इसमें कुछ नहीं है, फाड़ के फेंक दो, तो फाड़ के नहीं फेंकेगा, वो टैक्स लगा देगा, फिर आपको लड़ना पड़ेगा बिल में जाके. दिस इज अ केस विच इज बीइंग फेस्ड एज ऑफ टुडे, बिकॉज डिपार्टमेंट ने आज तक कभी डीआई जो ये बोलते हैं जिसको डेटा एनालिटिक्स, वो नहीं किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं. अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पीछे जान के पीछे पड़ गया, 360 डिग्री एनालिसिस कर रहा है. सो काफी कुछ पोर्टलों से इन्फॉर्मेशन ले रहा है अपने उधर, और वो इन्फॉर्मेशन को आपके रिटर्न के साथ मैच करके जहां जहां मिसमैच मिलते हैं वहां नोटिस ठोक देता है. दैट इज कॉल्ड एज अ 148. बट इसको बिल्कुल लाइटली मत लेना. बट एज ऑफ टुडे टिल 24, दैट इज 23-24 अकाउंटिंग ईयर को छोड़ करके टिल असेसमेंट ईयर 23-24 तक आपका ये इश्यू टैक्स फ्री जोन में कवर है. जब अमेंडमेंट लाया, अब से हम ये करेंगे, इसका मतलब इसके पीछे वाला पीरियड का एग्जाम था. अमेंडमेंट करने की जरूरत कब पड़ी कि अब आपको लग रहा है कि इसको हमें टैक्स करना है. तो द मोमेंट समथिंग कम्स फ्रॉम इफेक्टिव डेट एक्स, इसके पहले का एरिया एज इट इज चलेगा, पीछे का एरिया इस हिसाब से चलेगा. तो ये सारी डेवलपमेंट की जो अभी जो प्रोसीजर चल रही है उसको इफेक्टिव 1 अप्रैल 24 ऑनवर्ड्स एक डिफरेंट महीने से देखा जाएगा. तो यू नीड टू डू when you do the consultation with the developers for the redevelopment process, you will have an architect, you will have an advocate who will guide you. You may have to keep a chartered accountant also to help you or guide you in the taxation aspect, so that you are not caught on the wrong foot. Otherwise आपको पता है कि if you are caught on a wrong foot, अब सरकार 80% ले लेती है, 30% नहीं लेती है. तो एक बार, और प्लस रिटर्न्स भरना है किसी भी हाल में. So that is one issue which is burning. TDS is coming, which is all the more responsibility is cast on the society. Then one more issue which is being disturbed to the all cooperative housing societies is the ATP 2D. This issue is a burning issue because lot many governments, lot many states in the pan India is rendering different. पहले हम लोग इसको टच अप कर लेते हैं कि any cooperative housing society is keeping its extra money by way of fixed deposit with another cooperative bank.
and they are getting interest on that fixed deposit from a cooperative bank, it is exempt under ATP2D. That is the section says. But section में ATP2D में वो cooperative bank नहीं लिखा है, वहाँ any cooperative society earning interest from other cooperative society करके लिखा है. Hitherto we have been arguing, and in Mumbai hundreds of decisions have come in the cooperative housing society saying that interest earned by a cooperative housing society from the fixed deposits kept with a cooperative bank is exempt, because cooperative bank is a cooperative society. Primarily every cooperative bank has to be a cooperative society, then they apply license to the Reserve Bank of India for banking license, and then they become a cooperative bank. Maybe a cooperative bank, maybe a state cooperative bank, multi-state cooperative bank, but it has to be a cooperative bank. The moment it loses the status of cooperative bank and it becomes a scheduled bank or something of that nature, then you will not get that benefit of that. So any money kept with a nationalized bank or maybe the scheduled bank, that interest is taxable as on today. Secondly, interest earned from a nationalized cooperative bank does not fit into the category of the called as a concept of mutuality also. First we'll discuss this issue that why these courts have been doing this. Certain courts में ऐसा होता है कि डिसीजन लेने के टाइम कर्नाटक हाई कोर्ट में पहला एक इशू हुआ, वो इशू इसमें किसी और एंगल से हुआ था, तोदगर्स करके. सो तोदगर्स कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड करके कोई केस हुआ, तो कर्नाटक हाई कोर्ट में जो कोई जज बैठा था उसने ये वैलिड डिसीजन ले लिया कि कोऑपरेटिव बैंक्स आर नॉट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो ये ATP2D तो टैक्सेबल हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा. फिर उसी कर्नाटक हाई कोर्ट में कुछ दूसरा जज आया, उसने ये वर्डिक्ट पे दे दिया नो कोऑपरेटिव बैंक्स आर दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उसको मिलना चाहिए. बॉम्बे हाई कोर्ट का एज ऑन टुडे कोई लैंडमार्क डिसीजन सिमिलर इशू पे अभी तक नहीं आया हुआ है, बिकॉज बॉम्बे हाई कोर्ट में ऐसा कोई केस तो जाना चाहिए, वहां तक ट्रैवल करना चाहिए. अब सुप्रीम कोर्ट के पास अभी तक ये मैटर गया नहीं है, बट एक सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर जो जाता है वो मई वाली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए गया था. उसमें कोऑपरेटिव बैंक सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन अ डिसीजन दैट वो सारे अदर डिसीजन जो दिए वो ATP2D पे नहीं थे, दैट वाज ऑन ATP2AI और ATP4 और समथिंग, सो इट कैन नॉट बी मेड एप्लीकेबल ऑल टुगेदर टू कोऑपरेटिव हाउसिंग. अब इस सिलसिले में गुजरात हाई कोर्ट ने डिसीजन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसोसिएशन के लिए दिया था कि यस कोऑपरेटिव बैंक इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और आपको ATP2D का इंटरेस्ट मिलना चाहिए. अब बॉम्बे के जब असेसमेंट ऑफिसर आते हैं तो उनके पास बॉम्बे के असेसमेंट ऑफिसर के साथ में दलील की जाती है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने मना कर दिया तो ATP2D नहीं मिलेगा. आर्ग्यूमेंट क्या हुआ कि अगर पैन इंडिया सारी कोर्ट्स है जिसमें मेरी खुद की कोर्ट बॉम्बे में बैठा और मेरी बॉम्बे की कोर्ट अभी साइलेंट है, कुछ नहीं बोलती है, और दूसरी कोर्ट कुछ बोलती है, जैसे कर्नाटक बोलती है नहीं देंगे और गुजरात बोलता है देंगे, तो हम तो वही फॉलो करेंगे जो हमें फेवर में आता है, हम क्यों कर्नाटक को फॉलो करें. एंड सेकेंडली दिस इज एन इंसेंटिव प्रोविजन, सो इट शुड बी लिबरली इंटरप्रिटेड, एंड इफ टू व्यूज आर पॉसिबल then one view which is adoptable to a SSE should be adopted, not to the revenue. That is the law which says. So based on that, Mumbai Tribunal हर एक केस में ATP2D अभी अलाउ कर रही है. अब सुधार जी ने जो अभी बताया कि काफी कुछ केसेस में डिसअलाउ होके बेंगलोर से ही हमारा जो रिटर्न आता है उसमें ATP2D डिसअलाउ होता है. दी बेसिक रीजन इज दैट देयर इज सम डिफेक्ट इन फाइलिंग द ITR. जब ITR भरते हो तो सॉफ्टवेयर में कहाँ क्या चीज दिखाना है, अगर वो प्रॉपरली कर दो तो आपका ATP2D बेंगलोर से निकल जाएगा. कई लोग क्या समझते हैं कि सोसाइटी इज नॉट डूइंग एनी बिजनेस, सो इनकम एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट वी विल नॉट पुट इट इन द रिटर्न, विल स्ट्रेट अवे से दैट इतना है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज विच इज फ्री फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी और हमारा रिटर्न हो गया. दैट इज गलत. यू शुड नॉट डू दैट. सोसाइटी इज engaged in the business of maintaining the property. That is the activity which you can refer to. Activity code is some 0204 something of the return में डालना है, और पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको डालना है. पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डालोगे, उसमें आपका जो इंटरेस्ट आता है कोऑपरेटिव बैंक से, वो इंटरेस्ट की एक जगह पे सेक्शन सीरियल नंबर 14 1 and 2 में आते हैं, वहां डिस्क्लोज करना है, एंड देन यू क्लेम द ATP2D. आपका बेंगलोर से निकल जाएगा, बिकॉज बेंगलोर इज मैनेज्ड बाई IT. ठीक है, हाईएस्ट पेड इंजीनियर्स आर फ्रॉम द IT, और वो समझते कम है बनाते ज्यादा है, समझते कम हमें बनाते ज्यादा है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में एक इफ दिस देन दिस, दैट इज द सॉफ्टवेयर राइटिंग, इफ नॉट दिस देन दिस, वो फॉर्मूला पे काम करते, मतलब सॉफ्टवेयर का एक कोड लिखा जाता है, उसमें लिख देते कि अगर 14I में 14A और 14(2) में इंटरेस्ट नहीं दिखा है तो इसको ATP2D नहीं देने का, और दूसरा लिखा अगर 14A में लिखा है तो इसको देने का. सर्कस के घोड़े के जैसे चलते हो लोग.
तो आपको ये समझना चाहिए कि सॉफ्टवेयर इज ए मेड बाय समबडी हु इज नॉट एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट देन अस, बट पीपल से दैट। तो इसको ध्यान में लेते खाली 14A 14(2) में AB में इंटरेस्ट और डिविडेंड कॉलम है, वहां पे सेपरेटली दिखाओ, फाइल द एंटायर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट एंड देन क्लेम ATP2D, तो बैंगलोर से निकल जाएगा, यू विल नॉट हैव अ डिस्प्यूट ओवर टू दैट। अदरवाइज वो उसमें गलती करोगे तो ATP2D नहीं मिलेगा, डिसअलाउ हो जाएगा, फिर इट विल बी अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट्स। तो उसे एक इंटरेस्ट के लिए इतना काफी तो है, बट ATP2D में अमेंडमेंट सरकार क्यों नहीं कर रही है? केवल एक वर्ड डालना है कि एनी इंटरेस्ट अर्न्ड बाय अ कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव बैंक, वो बैंक ऐड करना है, इतनी छोटी सी अमेंडमेंट करने का। एंड आप लोग इतने छोटे हो कि आपका वॉइस उधर तक जाता नहीं है। सो ओनली वंस अ सेटल्ड केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कम्स, देयर मे बी एन अमेंडमेंट इन द सेक्शन ATP2D, बट टेक इट फ्रॉम मी, यू ऑल सोसाइटीज आर entitled to claim ATP2D interest from the cooperative bank। और अगर जो लोग वो समझते हैं कि नहीं नहीं कोऑपरेटिव बैंक में रिस्क है और आप अपना पैसा नेशनलाइज बैंक में फॉर्म कर रहे हो, तो लाइक आई मीन यू हैव टू फेस द इनकम टैक्स एप्लीकेबिलिटी, वही और तो करते। देयर आर पीपल हु से दैट कि भाई वी हैव टू मैनेज विद इन सर्टन रिस्क प्रोफाइल एंड ऑल दैट, तो आधा आधा पैसा रखते हैं। हाँ, सेकेंड वन मोर थिंग इज दैट देयर आर पीपल हु प्रिपेयर द बैलेंस शीट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और उनका GDCA ऐसा कोई तो भी ऑडिटर होता है, नॉट दी क्वालिफाइड A ग्रुप, B ग्रुप, C ग्रुप चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो क्या होता है, एक छोटी सी मिस्टेक ऐसी होती है कि देयर इज सम इंटरेस्ट विच इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक ऑन सिंकिंग फंड, ऑन एक्स्ट्रा रिपेयर फंड, एंड दैट इंटरेस्ट इज डायरेक्टली क्रेडिटेड टू इन द बैलेंस शीट इन द फंड इटसेल्फ। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं आया। अब 26 AS जो जमा कर रहे हैं वहां इंटरेस्ट दिखता है, तो वहां से भी वो पकड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट यहाँ 40 लाख है, इनकम टैक्स में 16 लाख, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो गलती भी मत करो। इट हैज टू बी रूटेड थ्रू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट दिखाओ, फिर डेबिट ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड करके दिखाओ, तो देन अगेन यू विल नॉट बी कॉट ऑन द रैंक फुट। सो दैट इज माई सजेशन। अगर नहीं करते हो तो दिस ऑल्सो टेंट अमाउंट्स टू अनडिस्क्लोज्ड इनकम, अनरिपोर्टेड इनकम, अंडर रिपोर्टेड इनकम, और ITO लोग तो आपको मतलब कौन से एक दफा निकालते हैं ना, दफा नंबर 200, 300, 400, बस वो चाहिए उनको, वो मिल गया तो फिर आपके ऊपर लग जाएंगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए यू मेक इट वेरी प्रॉपरली। एंड for me, the two takeaways is that interest on the cooperative bank is totally exempted under section ATP2D। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो समस्या होगी तो सुथार सर है, मिल के सुलझा सकते हैं। Now onwards in the development agreements there will be a TDS, so आप इसको properly draft करवाइए और make sure that society does not receive any consideration, then you may not have a problem, otherwise you will have। Thank you very much for patient hearing।